Hello, dear students. How are you all? I hope you all are keeping well. Today I am here with third chapter of the book First Flight. This chapter has two sections. We'll be reading about the first section. The name of this section is His First Flight. It is written by Limo Flaherty, and from the title only we can guess that it is about uh, the first flight of anybody. So whose it can be? See, it's about a seagull. It's about a young seagull who has not started flying yet because he is quite afraid. So how he overcomes over his fear of flying and how he becomes successful in flying, we will read through these lines. So the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So there is the word ledge, and the meaning of ledge is a narrow horizontal surface projecting from a wall, cliff, or other surface. So uh, what is ledge? Ledge is a kind of horizontal space सरफेस जो थोड़ी आगे बढ़ के हो, या क्लिफ की या किसी वॉल का थोड़ा सा जो बाहर की तरफ किनारा हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसको लेज बोलते हैं. सो द यंग सीगुल वॉज देयर सिटिंग अलोन. देयर वॉज नोबडी अराउंड हिम. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके जो भाई बहन थे, उसके टू ब्रदर्स थे एंड वन सिस्टर ही वॉज हैविंग, they had already flown away one day before. He had been afraid to fly with them. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था that he could not fly with them. He was quite afraid. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So, see from the image कि वो अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उड़ने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू फ्लाई बट ही रीच टू द ब्रिंक ऑल्सो. ब्रिंक का मीनिंग क्या होता है? एज, किनारा. तो वो लेज के, ये देखो दिस वन, ये जो थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ के है, आई शो यू. तो ये जो आगे की तरफ बढ़ के है, दिस इज़ द ब्रिंक. ठीक है, लेज का जो किनारा है उसको हम ब्रिंक बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ तक वो थोड़ा पहले वो थोड़ा बढ़ के आगे आया. ही केम फॉरवर्ड, बट जब उसने अपने फ्लैप करना शुरू करा विंग्स को, तो ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया. ओके, सो नेक्स्ट. Then that was 4 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight and teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So ये बात मतलब he had tried 24 hours ago. 24 घंटे, just full one day had gone. Okay, so he was still there alone. अकेला बैठा हुआ था. Nobody came, कोई नहीं आया उसके पास. एक दिन पहले तो सारा दिन वो क्या करता रहा? He just watched his brothers एंड सिस्टर फ्लाइंग, एंड उसके पेरेंट्स जो थे उसको स्किम करना सिखा रहे थे. ठीक है, स्किम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर क्विकली मूव करना. ठीक है, हवा में उड़ते हुए क्विकली मूव करना. ठीक है, उसको बोलते हैं स्किम करना. तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? उनको सिखा रहे थे, फ्लाइट करना सिखा रहे थे, उड़ना सिखा रहे थे, स्किम करना सिखा रहे थे. मतलब स्किम्स के ऊपर कैसे, वेव्स के ऊपर कैसे स्किम करना है, और डाइव फॉर फिश मतलब डाइव करके कैसे फिश को पकड़ना है. तो डाइव करना क्या होता है? डुबकी लगाना. सो their parents were busy, his parents were busy telling his brothers and sister, teaching all these tricks, and he was just watching them and waiting for them. See, his parents are helping his brothers and sister, and he is sitting alone on a side. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings could never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So
ग्रेट एक्सपेंस, जो इतना बड़ा सी फैला हुआ था, मतलब समुद्र फैला हुआ था नीचे, इतना दूर था वो, इतनी दूर दूर था। ही तो ही वॉज श्योर, उसको लग रहा था कि उसके विंग्स उसको कभी हेल्प नहीं करेंगे उड़ने के लिए। सो उसने क्या किया, ही जस्ट बेंट हिज हेड एंड रन वे बैक टू द लिटिल होल। तो वो वापस जाके अपने लेज के छोटे से होल में जाके सो गया। So see how he was so afraid. He was not even trying. Even when each of his brothers and sisters, and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. So जब उसके ब्रदर और उसकी इवन जो छोटी सिस्टर थी, जिसके विंग्स भी उससे बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो भी ब्रिंक तक जाके, एज तक जाके वो भाग के पहुंची, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप करा और उड़ गए। बट वो क्या कर रहा था, ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट इवन गैदर अप। मास्टर मीन्स गैदर, तो वो अपनी करेज इकट्ठी करके, मतलब थोड़ा साहस जुटा के, वो जंप भी नहीं कर पा रहा था। तो प्लांचेस जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, तो उसके उसमें इतनी भी नहीं वो करेज हो रही थी कि वो उसको प्लंज कर सके। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, डेस्परेट का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग अ होपलेस सेंस। तो उसको उम्मीद ही नहीं थी, उसको लगता था ये काम तो मेरे से होएगा ही नहीं। Okay, so his father and mother had come around calling to him shrilly. Shrilly means with a high pitched and piercing voice or sound. तो उसके फादर एंड मदर उसको मतलब डांटते हुए, एक तरह से चीखते हुए उसके पास आए। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, उसको डांटते हुए, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो उसके पेरेंट्स उसके पास आए, उसको डांट रहे हैं, उसको तीखी आवाज़ में बोल रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर तू नहीं आएगा ना, तुझे मरने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ पे हम नहीं आते, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मगर वो बिल्कुल भी मूव नहीं करा, वो वहीं पे बैठा रहा। दैट वॉज 24 hours ago. Since that, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अभी उसको ये सब करते हुए, देखते हुए 24 घंटे हो गए थे, ठीक है। तब से उसके पास कोई नहीं आया था। उसके ब्रदर्स क्या कर रहे थे, वो सीख रहे थे, बट ही वॉज सिटिंग अलोन देयर। He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring क्या मीनिंग होता है, फेयरली स्मॉल, मतलब छोटी सी कलर, सिल्वर कलर की फिश होती है, ठीक है, जो कोस्टल वाटर्स में बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर उसको बेचने में बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बेचते हैं। सो उसने ये भी देखा था कि उसका जो ब्रदर है वो अपनी फर्स्ट हेरिंग, मीन्स ही इज कैचिंग हिज फर्स्ट फूड फ्रॉम द सी, एंड डेवर, डेवर मीन्स उसको बड़ा हंग्रीली क्विकली उसे खा रहा है, ठीक है। उसने ये सब देखा, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल मीन्स शाउट करना, खुशी से वो करना, आवाज़ करना, उनको एक तरह से प्राउड फील करना, क्लैपिंग करना एक तरह की, है ना, जैसे हम क्लैप करते हैं ऐसे ही बर्ड्स जो हैं वो साउंड निकालते हैं। सो वहाँ पे उसके क्या पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके ब्रदर के आसपास सर्कल लगा रहे थे, उसके प्राउड फील कर रहे थे, ठीक है, कि उनके बेटे ने ये काम कर लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice means lack of bravery. So when you are not having bravery, you are मीन्स जब आप, ब्रेवरी का ऑपोजिट क्या होता है, कावर्डाइज। तो जब आप डरपोकता दिखाते हो तो दैट इट इज़ कावर्डाइज। तो उसके वो मॉर्निंग पे सारी फैमिली वो बिग प्लेट्यू, मतलब क्लिफ के बिल्कुल सामने जो है वहाँ पे जाती है। एंड ही वॉज जस्ट विद, दे वर टॉन्टिंग हिम कि वो डरपोक है, वो कर ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ हाउ द पेरेंट्स वर ट्राइंग टू encourage him to do the things. The sun was now ascending the skies. Ascending means climbing up.
So the sun was now ascending the sky, means it was sun rising, means sun rising, it was the मॉर्निंग टाइम द सन वॉज ascending, ठीक है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, तो ब्लेज कर रहा था, वेरी हॉट था उस टाइम पे. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. अब उसको हीट ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने एक 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, उसने कुछ खाया नहीं था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. अब लेज के पास वो थोड़ा आया, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. तो वो क्या करता है, पहले एक लेग पे जाता है, खड़ा होता है, फिर दूसरी पे खड़ा होता है, ठीक है, और दूसरी लेग को क्या करता है, अपनी विंग्स के नीचे छिपा लेता है, आंखें बंद कर लेता है और ये दिखाता है कि मैं तो सो रहा हूँ. सी, एंड देन still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. See, only mother is looking at him. So, अब वो दिखावा कर रहा था कि मैं तो सो रहा हूँ, but still they टुक नो नोटिस हिम. तो पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो भूखा है या क्या है, तो दे वर जस्ट इग्नोरिंग हिम. तो उसने क्या देखा कि उसके जो टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, दे आर जस्ट लाइंग ऑन द प्लेट्यू, और उन्होंने अपना हाथ जो है वो नेक्स्ट में डूब करा हुआ है, छिपाया हुआ है. तो हिज फादर वॉज प्रीनिंग वॉज मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, मतलब अपने फीदर्स को अरेंज कर रहे थे उसके फादर. एंड द अपनी वाइट बैग पे उस पर वो अपने फीदर को अरेंज कर रहे थे, मतलब उनको ड्रेस कर रहे थे. ओनली इज मदर, सिर्फ है उसकी मदर को वो देख रहे थे उसकी तरफ. अब मदर्स है, मदर को तो ध्यान होता ही है, तो हिज मदर वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. हम्प मीन्स थोड़ी ऊपर की तरफ जगह. तो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. तो शी वॉज देयर ओनली, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. तो उसकी ब्रेस्ट जो थी वो आगे की तरफ उसने करी हुई थी. नाउ एंड अगैन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. तो वो अब क्या कर रही थी, बार बार अपने फीट पे जो फिश थी उसको तोड़ रही थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. तो स्क्रैप कर रही थी, मतलब उसको शार्पन कर रही थी. स्क्रैप मीन्स शार्पन इन ए सेंस कि उसको रगड़ रगड़ के शार्पन कर रही थी कि वो उसको दोबारा टीयर कर सके. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब वो भूखा था, वो पागल हो रहा था खाने को देख के. नाउ ही हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगैन टू वेट इट. तो अब उसको याद आ रहा है कि उसको कितना अच्छा लगता था फूड को ऐसे तोड़ना, उसको स्क्रैप करना. तो स्क्रैपिंग मीन्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. तो मतलब वो फूड के ऊपर से वो चीज़ को निकाल देना जो आगे काम की ना हो, ठीक है. तो मतलब जो यूज़फुल चीज़ नहीं है, जो खाने के लायक नहीं, उसको निकाल के फेंक देना. तो क्या वो उसको कैसे बीक को शार्पन करके स्क्रैप करता था, एंड उसको कैसे खाता था. वेट मीन्स शार्पन करना, ठीक है. सो ही जस्ट थिंकिंग कि वो कैसे इसको इंजॉय करता होता था. गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वो अब उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे खाना दो. गाओ कूड़ा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. तो डिराइसिवली, तो वो बड़े गुस्से से उसको बोलती है कि तू तो पागल है. तो शी स्क्रीम्ड बैक उसको जवाब कैसे दिया, गाओ कूड़ा. But he kept calling plaintively. Plaintively means something done in a sad or mournful way. तो वो ऐसे ही मतलब दुखी होके वो ऐसा करता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अब 1 मिनट या उसके बाद उसके थोड़ा सा एकदम से खुशी से स्क्रीम करा. क्यों करा, बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ अ फिश एंड वॉज लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. अब पीस पकड़ के उसके पास से आ रही थी, उसकी तरफ गुजर रही थी. तो अब उसको लगा कि अब तो मम्मा खाना ले आएंगी.
ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। तो वो क्या आगे की तरफ बढ़ के अपने फीट को टैप करता है, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, ताकि वो उसके पास पहुंच सके, एज शी फ्लू अक्रॉस। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन स्टॉप, रुकना। तो अब वो जब उसके पास उसके ऑपोजिट पहुंची तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, मतलब उसकी विंग्स ने और उड़ना बंद कर दिया। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो फिश का पीस था वो सीगुल खा सकता था, उसके ऑलमोस्ट रीच के विद इन था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। अब एक मोमेंट सरप्राइज में वेट कर रहा है कि अब क्या हो गया। वंडरिंग शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो वो सोचने लग गया क्यों नहीं आ रहे मम्मा, क्यों नहीं आ रहे। और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी तो वो क्या करता है, उस पर झपटा मारने की, डाइव करने की कोशिश करता है फिश पे। विद द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब नीचे से तो जगह ही गुम गई, तो ही वॉज जस्ट फॉलिंग डाउन आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। तो अब उसको कुछ मूवमेंट नहीं। देन ए मॉन्स्ट्रेटर, अब बहुत डर गया वो, ठीक है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट stood still. He could hear nothing but it only lasted a minute. अब बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि अब नीचे ज़मीन नहीं थी, अब वो क्या कर सकता, अब उसको कुछ नहीं सुन रहा था। बट ये जो डर था वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब उसको अगले पल क्या लगा कि मेरे तो विंग्स स्प्रेड हो गए हैं, मतलब खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब हवा उसकी हर जगह लग रही थी क्योंकि विंग्स खुल गए थे। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तो ही कुड फील दैट हिज विंग्स आर मूविंग, दे आर कटिंग द air. He was not falling headlong now. So he was not falling down now. He was soaring gradually downwards and outwards. Sorry. He was no longer afraid. तो अब उसके जो विंग्स थे वो कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। अब वो डर नहीं लग रहा था, अब उसको थोड़ा सा डिजी लग रहा था, घूम रहा था वो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अप। अब विंग्स को फ्लैप करना शुरू करा और वो ऊपर की तरफ उड़ने लग गया। गा 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 कूलाला। तो हिज मदर वॉज स्वूप्ड पास, हिज मदर स्वूप्ड पास, मतलब उसकी मदर उसके पास से होके गई और वो ये साउंड्स करने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। तो उसकी विंग्स की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो उसने भी जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curveting एंड बैंकिंग एंड soaring एंड डाइविंग। अब वो कर रहा था, सारी उसकी फैमिली मेम्बर्स भी अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड हाउ दे वर अप्रिशिएटिंग, दे वर curveting. curveting मीन्स परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ जंप्स। तो वो ऊपर नीचे हो रहे थे। बैंकिंग मीन्स उसके आसपास घूम रहे थे। सोरिंग, कभी ऊपर जा रहे थे। एंड डाइविंग, इन दिस वे दे वर praising him, they were appreciating him. Then he completely forgot that he had not always been to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. एंड देन वो भूल गया, ही जस्ट फॉरगॉट दैट देयर वाज टाइम कि वो उसको डर लगता था एंड ही कुड नॉट फ्लाई एंड ही वाज प्रेजिंग हिमसेल्फ। कमेंडेड मीन्स प्रेजिंग, ही वाज प्रेजिंग हिमसेल्फ बाय diving and soaring and curving and shrieking shrilly. And he was shrieking shrilly का मीनिंग क्या है, टू utter a loud sharp shrill sound, तो पतली सी आवाज़ निकालना। So he was very happy for himself. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges. Ridges means waves. ठीक है, तो मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। तो वो अब सी के पास था, ठीक है, स्ट्रेट ओवर इट फ्लाइंग, उसके ऊपर उड़ रहा था, कभी ओशंस के पास था ना। अब उसको नीचे क्या दिख रहा, वास्ट ग्रीन सी दिख रहा था उसे, जिसके ऊपर वेव्स मूव कर रही थी। रिचेस मीन्स वेव्स। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। कॉड मीन्स आवाज़ निकालना, तो ही कॉ करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो वो तो ऑलरेडी उस पर लैंड कर चुके थे, मतलब वो लैंड इन द सेंस कि वो थोड़ा उस पर
ठहर चुके थे. दे वर बैकनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली. तो उसको क्या कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, जेस्चर हाथ अपने विंग्स के साथ एक्सप्रेशन दे रहे थे उसको, ताकि वो भी ऐसा करे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तो उसने कोशिश करी कि वो भी ग्रीन सी के ऊपर अपनी लैंड्स लेग्स रखे. ही स्क्रीम्ड, हिज लेग्स सैंक इनटू इट. तो वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया. ही कुड नॉट मेक अ बैलेंस ऑन इट. सो वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, तो उसकी लेग्स उसमें डूबनी शुरू हो गई. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगैन फ्लैपिंग हिज विंग्स. तो वो स्क्रीम उसने शुरू कर दिया, डर के वजह से चीखें मारनी शुरू कर दी, और उसने दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करी यूजिंग फ्लैपिंग हिज विंग्स. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर दैट ही कुड नॉट राइज. तो वो इतना ज़्यादा थका हुआ था, और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और इतना भूखा था कि वो ऊपर नहीं उठ सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना उठना, मतलब बार बार फ्लाई करना, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी. तो उसके फीट जो थे वो ग्रीन सी के अंदर डूब गए. एंड देन हिज बैली टच्ड इट. अब पानी के साथ उसकी बेली लगी. एंड ही सैंक नो फार्दर. आगे वो अब उसके बाद नहीं डूबा, मतलब उसके सिर्फ फीट सैंक हुए, और उससे ज़्यादा वो नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड विद हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. सो इन दिस वे हिज फैमिली वॉज प्रेजिंग हिम फॉर हिज दिस एक्ट, जो उसने करा था कि फाइनली ही हैड सक्सीडेड इन फ्लाइंग. And because he was successful in flying also, he was now floating on the sea also, and he could now he was able to catch his fish. And how his family was appreciating, they were screaming and offering their the scraps parts of dog fish to him. उसकी skin offer कर रहे थे कि अब तू इसे खा ले. So in this way he had made his first fly. So I think this story was very interesting. For me, it was very interesting. How do you like it? Please do share, tell me in the comments. I'll be waiting for it. And I think the story itself is quite amusing. It is actually it actually applies to our lives also, because we also sometimes feel some of the things very difficult, but later on we realize that they are actually very easy. So in this way, I hope you enjoyed reading the story. I'll be waiting for the comments. Thank you and have a nice day.